Good afternoon, everyone. Good Let me just afternoon, post in the sir. group. I think most of them have forgotten. Hi, everyone. Let's just wait for a few minutes because everyone are yet to join. Just in 2 minutes, we will start the class. तब तक के लिए any one of you has any doubts जो हैं यहाँ पर whatever we have gone through in the previous classes कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. So in the last class we talked about magnetic field due to a current carrying wire. So we have basically seen Biot-Savart's law, how it can be applied to find out magnetic field due to a finite wire having finite length and an infinite wire. So we extended this discussion for finding out magnetic field due to an infinite length wire as well as wire of in fact any shape. Even semi-infinite also we found the magnetic field. Yes, sir. Okay, so last class I have given you some homework from the modules. मैग्नेटिज्म का मॉड्यूल से कुछ मिला था होमवर्क? नहीं था? So from magnetic effects of electric current, so today we will even work out with the modules because we have covered quite important stuffs from the unit. Okay, so before everyone joins, of course, for some time we have to even do the question based on whatever we have completed. So mainly we'll focus today on questions. So let us start with this simple question.
A charge of 2 microcoulomb moves with a speed of this much along the positive x-axis. A magnetic field of strength this much exists in space. Find the magnetic force acting on the charge. Find out the magnetic force acting on the charge. So what we have here, चार्ज दिया हुआ है 2 माइक्रोकुलम, स्पीड दिया हुआ है चार्ज का 2 into 10 to power 6 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस स्पीड इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो वेलोसिटी ले लेते हैं, दैट इज आई कैप, एंड अ मैग्नेटिक फील्ड. What is the magnetic field? 0.2 j cap plus 0.4 k cap. You have to find the magnetic force. So we'll directly use the expression Q V cross B. तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? Q we will multiply later on. V cross B you can do. Just use the determinant I j k. V में क्या है? 2 into 10 to power 6. बाकी ये सारे 0. And then 0.2, 0.0, 0.2 and 0.4. So just determine this. You will get the force. तो क्या मिला force? सर कैलकुलेट कर रहे हैं. हाँ करो. So of course we will be getting a vector because they haven't asked us the magnitude of magnetic force. You have to just find out the magnetic force. अच्छा 10 to power 6 ये माइनस चला जाएगा. सो वी विल गेट फाइनली, यू हैव टू ऑल्सो मल्टीप्लाई विथ Q, क्योंकि फोर्स हमें कैसे मिलेगा? Q इंटू वी क्रॉस बी, और ये तो वी क्रॉस बी है बस. तो जो रिजल्ट आएगा यहाँ से वील मल्टीप्लाई दैट विथ Q. सो आई लीव दिस अप टू यू. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. समर, you have got -8 into 10 to power 5 into 10 to power 6, 2 into 10 to power 6 भी करेंगे ना, -6, because this is the charge, और F होता है Q V cross B. So we are just, mostly we are going to focus on the ways to complete them. Simple questions, calculation we will avoid now. So this is number 2. A charged particle is projected with a magnetic field B vector. ये magnetic field दिया हुआ है. Acceleration of the particle is found to be this. Find out the value of x. Yes, here you can tell me the answer, direct answer. If you want to use calculator, you can use. Example.
जल्दी जल्दी सब करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एक्सीलरेशन वेक्टर में क्या रिलेशन है? आर दे परपेंडिकुलर? बिकॉज इफ यू सी फोर्स वेक्टर इज क्यू वी क्रॉस बी, ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या है? v क्रॉस b के परपेंडिकुलर। सो लेट अस सपोज v और b इस प्लेन में है, तो फोर्स वेक्टर आउट ऑफ द प्लेन लेट अस सपोज है। तो फोर्स वेक्टर इनटू ईदर ऑफ दिस वेक्टर, अगर उसका डॉट प्रोडक्ट निकालें एफ डॉट वी या फिर एफ डॉट बी, तो इसका जीरो आना चाहिए रिजल्ट, राइट? मतलब कि एक्सीलरेशन वेक्टर, बिकॉज फोर्स इज m इंटू ए वेक्टर, सो वी जस्ट टॉक अबाउट द डॉट प्रोडक्ट, वी जस्ट इन्वॉल्व द वेक्टर्स। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन है, यहाँ पे बी वेक्टर है, दोनों का डॉट लेंगे, हमें जीरो आएगा। ए डॉट बी इज जीरो। इज दिस, जिनको डाउट्स है दे विल आस्क मी। ए डॉट बी जीरो है, तो यहाँ से हमें एक्स मिल जाएगा। कैसे? लेट अस फाइंड आउट। कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? सो एक्स इंटू थ्री प्लस टू इंटू फोर, ये हो जाएगा जीरो। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से हमें इजीली मिल जाएगा, दैट इज -8/3, राइट राइट राइट। Okay, next question we will do this one, number 3, everyone. Particle of mass m and charge q is projected at an angle 90 degree with speed v into a region having a perpendicular uniform magnetic field b of width d. Okay, इसका width भी दिया हुआ है d. You have to find the angle of deviation of the particle as it comes out of the magnetic field. है ना? ये this is specifying it is coming out. तो इस पॉइंट पे ये जो एंगल होगा that we will find out. सभी कोई जल्दी करेंगे इसको। सभी कोई करेंगे इसको।
यस वी हैव डन दिस बिफोर. साइन थीटा डी बी क्यू बाय एम वी मिल रहा है हमें. इसमें किसी को डाउट्स हैं? ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है. कोई डाउट्स हैं दे कैन रेज द हैंड. नहीं तो वी विल डायरेक्टली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So quickly we will finish all the questions in the modules today. Okay, जिनको doubts हैं they will raise the hand, then we will attempt because we already did this. Okay, let us do this one. We haven't attempted this. Everyone take your time and do attempt this. -36j minus 36i. Okay, so let's see what is required here. A square of side 2 meters is placed in uniform magnetic field 2 Tesla in a direction perpendicular to the plane of the square inwards. करंट कितना फ्लो हो रहा है? 3 एम्पियर. इस डायरेक्शन में करंट 3 एम्पियर फ्लो हो रहा है. Okay, now it is flowing in the directions as shown in the figure in the arms ACD, AD, like this, ACD,
AD एंड AED, 3 वायर रखा है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहे हैं। ओके, नाउ find the magnetic force on the loop. Here take the direction out of the page to be positive z axis, the upward direction to be positive y and the right to be positive x. हमने एक सिमिलर क्वेश्चन ऐसा भी किया था लास्ट क्लास में, जहां पर कि हमें बस एक स्क्वायर लूप में मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्ट कर रहा है वो निकालना था, राइट। तो सब पे, जैसे कि इस पे हम देखें तो फोर्स क्या लगेगा किस डायरेक्शन में, इट विल बी टू द लेफ्ट। तो AC पे फोर्स कितना लगेगा, BIL, राइट। बी वैल्यू वी विल सब्स्टिट्यूट लेटर क्योंकि ये तो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। तो AC पे मैग्नेटिक फील्ड BIL किस डायरेक्शन में, अच्छा वैल्यूज के साथ निकालते हैं। AC BIL मतलब कि 2 इंटू करेंट इज 3, लेंथ कितना होगा साइड ऑफ द स्क्वायर 2 along minus I cap, so that will be minus 12 I cap। अच्छा, ED के along ED in what direction the force will act, to the left, right। तो ED में भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा minus 12 I cap, बिकॉज एवरीथिंग इज कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है। इन द सेम मैनर AE पे किधर फोर्स लगेगा, यूज राइट हैंड पाम रूल, thumb in this direction, magnetic field into the plane, so all the 4 fingers into palm will be upwards। तो इसके मैग्नीट्यूड भी सेम आएंगे, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अलोंग J कैप, पॉजिटिव J कैप, राइट। तो ये हो गया हमारा 12 J कैप। CD पे किधर होगा डायरेक्शन, द फोर्स विल ऑल्सो बी अलोंग पॉजिटिव Y, तो 12 J कैप। बट AD, AD पे फोर्स किधर होगा, इन दिस डायरेक्शन, परपेंडिकुलर होते हैं हमेशा, राइट। तो ये फोर्स जो होगा, फोर्स का हमें मैग्नीट्यूड मिला, दैट इज अलोंग AD फोर्स होगा हमारा, लेट अस फाइंड द मैग्नीट्यूड, B इंटू आई इंटू एल, लेंथ क्या होगा L√2, मतलब कि 2√2, सो 12√2। अच्छा 12√2 तो मैग्नीट्यूड आया, सो वी नीड टू प्रोजेक्ट देम। तो प्रोजेक्ट करेंगे तो किधर होगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। एंगल कितना है 45 45, सो 12 12, so force on AD will be 12 minus 12 I and then plus 12 J cap। So let us find out the total force। तो सबको हम ऐड कर देंगे to find out the force acting on the loops। तो minus 12 we get, अच्छा ED पे भी नेगेटिव डायरेक्शन ना, ये प्लस क्यों आ गया, तो -12 -36 I और 12 12 12 36 J cap। So this is the force acting on the complete loop। Okay, moving to the next question। जिनको doubts होगा they can raise hand before I move on to the next question। So as I say, you all can use the calculators ताकि हम जल्दी करें। We will do the question maximum number of questions because this is all about just the calculations। You have to just use BQV taking direction into consideration। -0.4 J cap। Let us see। Meanwhile you all students, अगर आपके पास आंसर है तो आप मैच करते जाओ।
लेट अस कैलकुलेट। क्या ये -0.4 जे कैप क्या क्या है? वेलोसिटी है हमारे पास, फोर्स दिया हुआ है, एंड व्हेन इट्स वेलोसिटी इज अलोंग y इट मूव्स अनडिफ्लेक्टेड, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? अच्छा, प्रोटॉन क्या दिया हुआ है कंडीशन? इट इज मूविंग विथ सर्टेन वेलोसिटी, तो इसका डायरेक्शन ये है, राइट? 2 i कैप 3 j कैप। चलो ये 10⁻⁶ साइड में रखते हैं, मतलब कि इसका डायरेक्शन कुछ इधर है, अगर हम इधर x और इधर y लेंगे। फोर्स का डायरेक्शन क्या है? -1.8 माइनस along z एक्सिस, माइनस z एक्सिस वी कैन से। तो वेलोसिटी है along xy प्लेन, फोर्स है along z एक्सिस। We have to find out the magnetic field. Also it is given that when its velocity is along y, जब इसका velocity y में है, it moves undeflected, undeflected मूव कर रहा है, मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, that magnetic field should be in the direction or opposite to this direction, that we are sure, right? So we are confirmed about the direction कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो होगा इधर प्लस साइड में या फिर माइनस साइड में। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई कि प्लस होगा या माइनस होगा। तो देख ये केस लेते हैं, इसमें चार्ज इधर मूव कर रहा है, दैट मीन्स आवर थंब विल बी इन दिस डायरेक्शन, और मैग फोर्स किधर लग रहा है? अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। फोर्स किधर लग रहा है? नेगेटिव जेड एक्सिस, मतलब कि चलो इसको ले लिया इनटू द प्लेन, फोर्स इनटू द प्लेन, मतलब कि हमारा जो पाम का जो फेस होगा वो दैट विल बी इनटू द प्लेन, और थंब जो होगा दैट विल बी along this direction, राइट? हमने क्या लिया है? x along पॉजिटिव राइट साइड, y लिया है हमने अप साइड में, और z एक्सिस लिया है कमिंग टुवर्ड्स अस। तो फोर्स दिया है माइनस z एक्सिस पे, मतलब दैट डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस इनटू दिस कंप्यूटर स्क्रीन, विथ रेस्पेक्ट टू कंप्यूटर स्क्रीन इट इज इनटू। सो इफ वी अप्लाई राइट हैंड पाम रूल, तो हमें पॉजिटिव y के तरफ मिलेगा या नेगेटिव y के तरफ मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड, दैट यू हैव टू डिटरमाइन। इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट यू कैन सी नेगेटिव y की तरफ मिलेगा। इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, चलो वेलोसिटी का मैं कंपोनेंट ले लिया 90 डिग्री करने के लिए, ये कंपोनेंट ले लिया। ये तो बता दिया अगर ये इधर मूव किया तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ओके। दैट मीन्स हमारा जो थंब होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, राइट? इस डायरेक्शन में हम थंब अगर रखेंगे तो परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर अरेंजमेंट नहीं होंगे हमारे थंब एंड ऑल द फिंगर्स। ओके, सो वी प्लेस द थंब इन दिस डायरेक्शन और पाम को फेस करते हैं इनटू द स्क्रीन, तो हमारे पास फोर्स मिलेगा इन दिस डायरेक्शन, मतलब कि नेगेटिव वाई एक्सिस। Okay, so now we can just find out the result based on very simple calculation. You can just use the formula F is equal to BQV. So calculation I leave it up to you. Let us just see the arrangement. तो चलो मैंने वही यूज किया, F is equal to BQV, and which component of velocity we will take here. Let us put the values. F के जगह चलो मैंने रखा -1.28 इंटू 10⁻⁻13। मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोटॉन 1.6 10⁻⁻19 चार्ज। अब इसकी जो वेलोसिटी हम लेंगे, दैट वेलोसिटी you can use, or we will just use cross product because here we have certain angle. So v क्रॉस b कर दिया मैंने,
v क्या दिया हुआ है 2i प्लस 3j इंटू 10⁻6 v क्रॉस b वेक्टर. सो फ्रॉम हियर ये जो क्रॉस का होगा वैल्यू दैट विल बी अलोंग k cap minus k cap. So from here we can easily solve for this b. ये सॉल्व हो जाएगा. क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का हमें आइडिया तो हो ही गया है ना. वी कैन राइट मैग्नेटिक फील्ड लेट अस सपोज x इंटू जे कैप माइनस. तो इसके जगह वी कैन सब्सटीट्यूट माइनस एक्स जे कैप. तो इसका क्रॉस लेना है माइनस एक्स जे कैप एंड देन 2i कैप प्लस 3j कैप इंटू 10⁻6. ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है. तो ओवरऑल क्रॉस प्रोडक्ट अगर देखें तो उसमें आ जाएगा आई जे के और फिर v क्रॉस b. तो 2 इंटू 10⁻6 3 इंटू 10⁻6 के में 0 है. b का जो है वो माइनस एक्स इधर है, ये दोनों 0 है. सो यू कैन फाइंड दिस डिटर्मिनेंट अलोंग दिस रो. एनीवेज दिस डिटर्मिनेंट आई लीव इट अप टू यू. तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.6 इंटू 10⁻19 ये वाला इंटू x इंटू समथिंग अलोंग k कैप आएगा हमारा, ताकि हम कंपेयर कर देंगे एंड वी विल बी एबल टू फाइंड आउट दिस x. So if we just calculate, I just use the calculator. So we go ahead to the next question. So yes, we get minus 0.4 j cap. Okay, we'll move to the next question. ये छोटा सा कैलकुलेशन है, I leave it up to you. Okay, this question we all will do. First, you all can try. So here you have to find the magnetic field. Let us understand the situation. A beam of charged particle, all having kinetic energy. हर पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है. कंटेनिंग टू काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स, एक का मास ये है और दूसरा का मास ये है, एंड ऑल हैविंग द सेम चार्ज, इमर्ज फ्रॉम द एंड ऑफ द एक्सीलरेटर ट्यूब. तो ये कुछ तरह से एक्सीलरेटर ट्यूब है. देयर इज अ प्लेट एट अ डिस्टेंस 10⁻⁻2 मीटर. ये सेपरेशन है 10⁻⁻2 मीटर्स एंड प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द बीम. You have to calculate the minimum magnitude of magnetic field which can prevent the beam from striking the plate. मतलब कि ये देखो प्रोजेक्ट कैसे किया है हमने चार्ज पार्टिकल को. दो टाइप के चार्जेस हैं, उनके प्रोजेक्शन कितने एंगल पे है 90 डिग्री, राइट, बिकॉज वेलोसिटी इज गोइंग टू द राइट और मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज गोइंग इनटू द कंप्यूटर स्क्रीन. तो एंगल 90 डिग्री है. तो इस केस में सर्कुलर पाथ कवर करता है. अब ये टच ना करे, मतलब कि ये जो पार्टिकल है ये इसको टच करने से मतलब कुछ इस तरह से ऐसा सर्कुलर कर्व बना दे, मीन्स दैट उसकी जो रेडियस होगी दैट रेडियस विल बी 10⁻⁻2 मीटर.
So we can use this idea quickly. We'll do. So we are just going to use R is equal to mv by bq. हमारे पास था फॉर्मूला mv by bq. अब mv क्या है? मोमेंटम है, राइट? ये चलो इसको ऐसे लिख सकते हैं, p by bq. p मोमेंटम है. मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है? दिस एनर्जी गिवन इज काइनेटिक एनर्जी. वी नो k इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m. तो p क्या हो जाएगा? √2km by bq. तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो रेडियस है दैट इज डिपेंडिंग ऑन द मास. जिसका मास ज्यादा उसका रेडियस ज्यादा. तो हमें क्या निकालना है? दैट मिनिमम, यू हैव टू फाइंड द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो इसको अरेंज कर देते हैं. वी विल गेट मैग्नेटिक फील्ड एज √2km by q into r. So we will put the values here. रूट अंडर 2. काइनेटिक एनर्जी क्या है? 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल इंटू मास. विच मास वी आर गोइंग टू टेक हियर? mass of the lightest particle 1.6 into 10 to power minus 26 kg divided by q. q हमें लेना है सेम चार्ज 1.6 10 to power minus 19. r है 10 to power minus 2. so if we calculate this, ये 1.6 1.6 दो और ये एक कट गया. ये हो गया -16. ये गया -42. तो 10 to power minus 21. ये और ये कट गया. तो आंसर हमारा बच गया √2 टेस्ला. दैट विल बी द आंसर. ये समझ में आया सभी को? क्या हुआ इसमें? क्यों हमने कंसिडर किया 10 to power -2? Yes, sir. यस, एग्जैक्टली. वी नीड टू टेक द मास ऑफ हेवियर. ये पावर देख के we can find, we can say this is the mass of the heavier one because r is directly proportional to m. Okay, can anyone tell why we are not taking the mass 8 into 10 to power minus 27? हमने ये 1.6 प्रोटॉन का मास क्यों लिया? Sir, because if we are using the 1.61, then automatically the other one will be deflecting. The other one, if we are 8.8 into 10 to the power minus 27, if we are using the other one, need not deflect. So that's why we are using 1.6. हाँ, तो दूसरा में हो सकता है that will not match up with the radius that we have taken here, है ना? क्योंकि हम क्या देख रहे हैं? रेडियस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू मास. It is directly proportional to √m according to the equation we have used. Okay. Okay, so one we will do based on the cyclotron. यस अभिराम, डिफ्लेक्शन वाला में भी, डिफ्लेक्शन का भी तो हम यही केस लेके करते थे ना. तो अगर इसमें भी डिफ्लेक्शन हम कंसिडर करेंगे एट द एंड बाय 90 डिग्री, सो वी कैन डू दैट. क्योंकि एट द एंड में क्या होता था? ऐसे आके ऐसे होगा, मतलब कि यहाँ पे आने के बाद ये टेंजेंशियल होगा. ओके, दिस वन वी विल डू.
Yes, Mohammed, we have to consider the mass 1.6 into 10 to power minus 26. Yes, Mohammed, what doubt you have exactly? Let me know that. Okay, why did we take that mass and not the other one? ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, एक बार वापस चलते हैं इधर. 8 into 10 to power minus 27 और 1.6 into 10 to power minus 26, इसमें से which mass is the bigger mass? One point six into 10 to power minus 26, right? So this mass is high. So if this mass is high, मतलब कि हमें दिख रहा है रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एम, और रेडियस को हमने कंस्ट्रेंट कर दिया है 10 टू पावर माइनस 2. बट अगर हम एक नॉर्मली देखें तो मास जितना बढ़ेगा रेडियस उसका उतना बढ़ेगा, राइट? तो हमने हेवी पार्टिकल के हिसाब से रेडियस निकाला. लेट अस सपोज हमने ये सोचा कि हेवी पार्टिकल अगर यहाँ से यहाँ आ जा रहा है तो लाइटर पार्टिकल का तो डेफिनेटली रेडियस कम होगा ना, मतलब वो तो कुछ ऐसा ट्रेस करेगा. सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसिडर द हेवियर मास. मतलब मैक्सिमाइज कर दिया हमने सिचुएशन को कि अगर मास हेवी रहता, हेवी कंसिडर कर लिया, तो रेडियस मैक्सिमम इतना होगा. सो वी इक्वेटेड दैट. इज दिस क्लियर नाउ? Okay, now we will go to this one. What is the magnetic field for this question? Okay, for this one, cyclotron oscillator frequency, what should be the operating magnetic field? You have to find that. Yes, sir. Answer I am asking. Okay, let me just calculate. How much you got? 0.6 I got, sir. Into 10 to the power 7. Okay, let us see. साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी इतना है. व्हाट शुड बी द मैग्नेटिक फील्ड फॉर एक्सिलरेटिंग प्रोटॉन्स? चार्ज दिया हुआ है. इफ द रेडियस ऑफ इट्स डीज, ओके, आर इज गिवन एज 0.6 meters. What is the kinetic energy of the proton beam produced by the accelerator? You have to even find the kinetic energy of this. इसमें अगर हम, let me just calculate, you all can do. I'll just check the answer. I'm getting the magnetic field only in terms of 0.6. सभी को आ रहा है, बिकॉज ये देखो फ्रीक्वेंसी जो है उसको भी चेंज करना है ऐसा यूनिट में ना. 10 into 10 to power 6 hertz, Oh, yes, sir. right?
सभी को देखो क्या क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 10⁷ हर्ट्ज, रेडियस ऑफ द डीज दिया हुआ है. They are asking what should be the operating magnetic field for the protons. Protons means you have the mass, you have the charge. Q or M available hai for the protons. So here we will again use that same expression. R is equal to, let us use the expression of time period या फिर frequency you can say. तो क्या होता है हमारा 2πf is equal to bq by m. So frequency is equal to bq by 2πm. If you just put the answer values here, m का value ये, q का value ये, you will get, you can solve this and get the value of b coming as 0.6 Tesla approximately. Next part, what is the kinetic energy of the proton beam produced by the accelerator? Now this is simple. You have to find the kinetic energy. तो kinetic energy के लिए हमें पहले velocity पता होना चाहिए ना, speed. So how will we find out the speed? Using again the same expression. R is equal to mv by b cube. तो इसमें अगर मैं वैल्यूज रखा तो मुझे v मिलेगा बी क्यू आर बाय एम. तो b वैल्यू यहां से जो निकाला 0.6, q का ये वैल्यू और r का वैल्यू गिवन है, दैट्स द रेडियस ऑफ द डीज. m का ये वैल्यू हमने रखा तो हमें यहां से v मिल गया So I'm finding the approx only. So we get V as 10 to power 8 here, 0.36, 3.6 into 10 to power 7 meter per second. So if you put here, you will get half mv square. Mass फिर से ये यूज करेंगे, v फिर से जो हमने कैलकुलेट किया है, and we will get the answer. So this calculation again I am leaving up to you. We'll move to the next question. Okay, I'll give you the answers for this. Later on you can match. तो मुझे जो यहाँ से B मिला, आई एम गिविंग द अप्रॉक्स आंसर. B मिला 0.6 और काइनेटिक एनर्जी अगर मैं यहाँ से देखूं तो मुझे मिला अप्रॉक्स राइट 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यू ऑल कैन कैलकुलेट efficiently and get the exact result. ये अप्रॉक्स है. Okay, this one we will do the last question based on these simple things. All right, Abhiram, you can do this one.
Yes, Mohammed. 15 root 2 centimeter, that is right. So being very honest, sabhi koi, they will take part in the poll. 15 root 2 Abhiram, मीटर पर सेकेंड, मीटर में राइट या सेकेंड में, सॉरी सेंटीमीटर में या मीटर में, सेंटीमीटर, राइट राइट. सभी कोई करेंगे इसको. 15 रूट 2 सभी को मिल रहा है. सभी को मिलना चाहिए. सो लेट अस सी हाउ टू डू दिस. We can get the ratio of their momentums. Let us see what the things are. Stream of protons and neutrons in vacuum chamber enters a uniform magnetic field. तो क्या क्या बात हो रहा है यहाँ पे, एक तो प्रोटॉन का और एक ड्यूट्रॉन का. Both protons and neutrons have been subjected to same acceleration potential, having hence the kinetic energies are same. दोनों को kinetic energy same है. Ion stream is perpendicular to the magnetic field and the protons move in a circular path of radius 15 centimeter, 0.15 meter. So 15 cent, okay, 0.15 meter. You have to find the radius of the path traversed by the neutrons, given that the mass of neutrons is twice that of proton. मास ऑफ ड्यूट्रॉन क्या है 2m, अगर मास ऑफ प्रोटॉन m है तो डेफिनेटली इसमें रेडियस क्या होगा ड्यूट्रॉन का, इंक्रीज होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि हमने अभी देखा था एक क्वेश्चन, r इज इक्वल टू, r was directly proportional to root m if the kinetic energies were same, right? So we can use this expression. तो पहले तो r क्या होगा, mv by bq. r is mv by bq, right? तो प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन के रेडियस हम, इफ वी डिवाइड, जैसे ये होगा रेडियस ऑफ प्रोटॉन और रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन क्या होगा, मास क्या हो जाएगा 2m. अच्छा, ये वेलोसिटीज के बारे में आइडिया नहीं है ना, सो लेट अस डू वन थिंग, लेट अस चेंज दिस एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ r इज इक्वल टू √2 km बाय bq. ओके, तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा √2 m km बाय bq, और रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन क्या हो जाएगा √2 k, मास की जगह क्या आ जाएगा 2m, राइट? मास की जगह 2m आएगा और चार्ज की जगह क्या आएगा, ड्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इज द चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन सेम, चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड ड्यूट्रॉन आर सेम. तो 2k इंटू 2m, तो ये √2 हो गया m बाय bq. देखो ये सेम है ना, तो दैट्स दिस वी कैन राइट रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन एज रेडियस ऑफ प्रोटॉन टाइम्स √2, और रेडियस ऑफ प्रोटॉन क्या दिया हुआ है 0.15 मीटर. तो 0.15 √2 मीटर इज द आंसर, राइट? इट्स ऑल्सो स्टेटेड हियर, कहीं पर था कि देयर चार्जेस आर सेम.
पता नहीं किसी और क्वेश्चन में होगा, बट yes, their charges are same. Okay. सबको क्लियर है? It's a simple question, right? Just it appears to be quite bigger. Okay. Let us do the next question. So now we will do the questions based on magnetic field due to a straight wire, which will include Biot-Savart's law. अच्छा, उससे पहले वन वेरी सिंपल क्वेश्चन, कि ये जो मुझे दो रेस्पॉन्स मिले हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है, यू ऑल कैन मैसेज मी प्राइवेटली कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ दिक्कत हो रहे हैं, ठीक है? कोई क्वेश्चंस में अगर दिक्कत है तो उसी टाइम पूछ लो मुझे, या कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो रहे हैं, ओके? मैसेज मी privately. Let me see. Okay, moving to a very simple question. Okay, so you all can tell me what option is right, A, B, C, and D. You have to find the dimensional formula of the magnetic permeability of free space. You have to say A, B, C, or D. Which one is correct?
अच्छा, मुझे इसका ऑप्शन ए मिल रहा है ज्यादातर से। लेट अस सी क्या सही है। So dimensional formula we have to find for magnetic permeability. तो किसी भी चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसके बेसिक फॉर्मूला को रिकॉल करते हैं। एनी फॉर्मूला विच कम्स इन माइंड एंड वी विल ट्राई टू ब्रेक दैट इनटू द मोस्ट बेसिक फॉर्म। तो मैग्नेटिक फील्ड में बेसिक फॉर्मूला क्या आ रहा है हमें, F इज इक्वल टू बी क्यू वी, ये आ रहा है। एक तो ये कंसिडर कर सकते हैं, या फिर ये कंसिडर कर सकते हो के आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, राइट। बट इसमें से मैग्नेटिक फील्ड का हम निकाल सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। कहीं पर यू नॉट है इसमें, देखो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड दो ही फॉर्मूला हमने पढ़ा, राइट। इन्हीं फॉर्मूला को यूज करके हमने थर्ड फॉर्मूला निकाला, तो वो तो चलो यूजेज यही हो गया। ये दो बेसिक फॉर्मूले में मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व है। अब म्यू नॉट किस में इन्वॉल्व है, जो एक्चुअली हमें चाहिए। क्या इसमें म्यू नॉट इन्वॉल्व है? नो, इसमें म्यू नॉट इन्वॉल्व है। यस इट इज इन्वॉल्व। कहां पर इन्वॉल्व है? ये के का ही तो वैल्यू है, म्यू नॉट बाय 4 पाई। तो म्यू नॉट को हम कैसे लिख सकते हैं? आई विल अरेंज, आई राइट बी, आर स्क्वायर डिवाइडेड है, इधर आके मल्टीप्लाई आर स्क्वायर बाय आई इंटू डी एल। साइन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं, 4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंट एंड कॉन्स्टेंट डू नॉट हैव एनी डायमेंशन। ओके, अब इसमें से मुझे फर्स्ट इक्वेशन भी जरूरी होगा, क्योंकि वहां से मुझे बी के सिंपल टर्म्स पता चलेंगे, हाउ आई कैन राइट और एक्सप्रेस बी इन टर्म्स ऑफ सिंपल फॉर्म। तो यहां से बी क्या होगा, एफ बाई क्यू बी, राइट। तो बी को हम लिख देंगे म्यू नॉट विल बी एफ बाई क्यू बी इंटू आर स्क्वायर, ये आई इंटू डी एल। डी एल क्या हो गया? लेंथ। चलो मैं लेंथ लिख देता हूँ, बाद में कभी यूज करेंगे। ओके, फोर्स अगेन आई कैन सिंप्लीफाई। अच्छा, किन टर्म्स में सिंप्लीफाई करना है? डायमेंशनल टर्म्स में लिखना है ना, मतलब कि एम एल टी और ए, मतलब इन सब को ईदर ऑफ देम वी हैव टू कन्वर्ट। चलो ये आर स्क्वायर कैसे हो गया, एम, ये एल स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर हो गया एल स्क्वायर। नीचे लेंथ क्या हो गया? एल, ये भी हो गया। आई क्या हो गया? ए, यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, ये भी हो गया। क्यू का यूनिट क्या हो गया? चार्ज, चार्ज इज करंट इनटू टाइम। व्हाई आई एक्सप्रेस चार्ज इन दिस फॉर्म, ताकि मुझे ए इंटू टी मिलेगा, जो गिवन है यहाँ पर, तो ये भी हो गया। वेलोसिटी या स्पीड, इसका क्या होता है यूनिट? एल टी टू पावर माइनस वन, ये मिल गया। फोर्स को कैसे हम लिख सकते हैं इन टर्म्स में? एम इंटू ए, मतलब एम एल टी टू पावर माइनस टू। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा? एल, और ये एल चला गया, ये एक एल और ये चला गया, बचा क्या? सिर्फ एक एल बचा, और सारा एल इन्वॉल्व हो गया। टी टू पावर माइनस वन और टी चला गया, बचा टी टू पावर माइनस टू। ए स्क्वायर नीचे, ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, ए टू पावर माइनस टू एम टू पावर वन। तो हमारा आंसर क्या होगा? अरेंज करते हैं, एम एल टी ए के फॉर्म में, एम एल टी टू पावर माइनस टू ए रेस टू माइनस टू। तो ये ऑप्शन ए क्लियर है यहाँ पे, है ना? ये सभी को समझ में आ ही गया होगा। लेट अस डू दिस वन। अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट्स लॉ, इसको बस हम देख लेते हैं एक बार। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट, मतलब कि डीबी, ये जो होता था एक्सप्रेशन मैग्नेटिक फील्ड का, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, राइट। दिस विल बी द करेक्ट। डीबी देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डीबी, दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ बायोट सावर्ट्स लॉ। डेफिनेशन को मिला के ही हमने ये एक्सप्रेशन निकाला था। So it is only inversely proportional to the square of the distance. Okay, simple question. Now we will do. Actually, this module contains questions mixed up from Biot-Savart's law and Ampere-Circuital law. We will only do those questions which are from Biot-Savart's law. Okay, this question we will do it now.
So what was the expression of magnetic field due to straight wire? You can remember these formulas. Due to finite length of wire, ये था हमारा फॉर्मूला. सो इफ यू wish you can use them. इन्हीं से हम निकालते थे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर या सेमी इनफाइनाइट लेंथ वायर. Accordingly, what the situation demands here, you can use that. (10⁻⁴ Tesla. That's right. For the magnitude of magnetic field. Direction भी होगा into the plane. Let us see what is here. A pair of stationary and infinite long bent wires are placed in the xy plane. तो जो wires हैं they are infinite long हैं जिनको कि हमने bend कर दिया. Each wire carries current 10 amperes. The segment SL and RM, ये जो SL है और ये RM है, they are along the x axis. तो जब भी हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं ना उससे पहले वी हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई व्हाट ऑल थिंग्स आर गिवन एंड हाउ वी कैन कंबाइन देम. नाउ द सेगमेंट्स RP and SQ are parallel. Okay, this is also given to us. Such that OS and OR they are 0.02 meter. OS and OR are 0.02 meter. ये जो डिस्टेंस है दैट इज 0.02 मीटर. फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट O. ये हमने पढ़ा था ना, अगर वायर है तो इसके अराउंड ही मैग्नेटिक फील्ड होगा. देयर विल बी नो मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग अलोंग द एक्सिस. तो यहाँ देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो डेफिनेटली होगा, राइट? इट्स नॉट अलोंग द एक्सिस. So what will be the expression of magnetic field that we will use? ये जो है ये सेमी इनफाइनाइट वायर की तरह है ना यहाँ पर. ऑल्दो दिस वाज इनफाइनाइट बट वी बेंट इट इन दिस फॉर्म. तो इस मैग्नेट इन दो वायर्स के वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर नहीं होगा बिकॉज दिस पॉइंट इज अलोंग द एक्सिस विथ रेस्पेक्ट टू दीज टू वायर्स, है ना. तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो बस इस वायर और इस वायर की वजह से होगा. और सेमी इनफाइनाइट मतलब कि एंगल क्या होता था, एक 0 होता था, दूसरा 90 होता था. तो ये 0 रखेंगे और ये 90 रखेंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आएगा KI/A.
तो इस वायर के वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनटू, राइट। जस्ट अप्लाई, कौन सा रूल यूज करेंगे डायरेक्शन के लिए, राइट हैंड थंब रूल। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, यहां पर थंब नीचे रखेंगे तो देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इज अगेन गोइंग इनटू। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 2KI/A। तो लेट्स पुट द वैल्यू, क्योंकि दोनों के वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐड होंगे। सो 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू करंट इज 10 एम्पियर डिवाइडेड बाय ए। ए मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 0.02, मतलब 2 इंटू 10⁻²। तो इसको अगर हम कट करेंगे तो हमें मिलेगा 10⁻⁻4 टेस्ला। एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन, इनटू द प्लेन। ये समझ में आया सभी को? दिस इज द डायरेक्ट यूज दैट वी आर मेकिंग फॉर द इक्वेशंस दैट वी लर्न। समझे सभी कोई? वी शैल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। कोई डाउट्स नहीं है इसमें? अगर कोई डाउट्स है दे विल रेज द हैंड्स। So most of the questions that we have in Biot-Savart's law part, क्योंकि हमने उसका एक ही पार्ट कंप्लीट किया है, they are also containing questions based on the loops, Amperean loops. So we'll talk about magnetic field due to circular wires and Ampere's law in the next class. But before that, let us complete level 3 of 218.1, moving charges and magnetism. So 1 and 2 levels we completed. ओके अब ये थोड़ा स्टॉप कर देते हैं। ओके सबके एफिशिएंसी दैट्स गुड। चलो दैट्स गुड, कोई नेगेटिव एफिशिएंट नहीं है। ओके so before the class ends, let us finish this first part. So 2 more questions just we have. So one we will do this question and next we will do this question. So quickly in 2 minutes, let's begin with this question first.
So particle of specific charge alpha. Specific charge. What is meant by specific charge? What is specific charge? Charge per unit mass. Right. So that is alpha q by m. So it enters a uniform magnetic field जिसका की magnitude है b naught and it's into the plane of the screen, let's say, indicating minus z axis with velocity v naught from the origin. Find the time dependence of velocity and position of the particle. ठीक है, तो इस केस में एंगल क्या है प्रोजेक्शन का 90 डिग्री. तो ये जो पार्टिकल मूव करेगा दैट विल फॉर्म सर्कुलर पाथ, राइट. So we need to find time dependence of velocity. That means how the velocity will vary, and also we will find the position. So definitely position is also going to change. और indicate किया गया है कि जिस point से हमने इसको project किया है that is the origin point. Right. So if we talk about the velocity, velocity क्या होंगे? There will be two component of velocity. किसी point पे देखें तो एक तो velocity हो, let us suppose इधर है v naught, इधर हो गया v naught cos थीटा हो जाएगा और इधर हो जाएगा v naught sin थीटा. किसी point पे velocity क्या होगा? v naught cos थीटा I cap plus v naught sin theta j cap, provided that this is angle theta. Now we have to just find out angle theta. फिर देखेंगे कि टाइम में कन्वर्ट होता है कि नहीं. तो थीटा कैसे निकालेंगे यहाँ पर? हाउ विल वी फिगर आउट थीटा? बस ओनली दैट मच थिंग वी हैव. थीटा हमें पता है ओमेगा टी होता है, राइट. ओमेगा इंटू टी स्मॉल टी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी. ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ. तो 2 पाई एफ इंटू टी. और 2 पाई एफ का एक्सप्रेशन तो हमें पता है ना. यहाँ पर फोर्स क्या लग रहे हैं? एम वी स्क्वायर अपॉन आर, सेंट्रीपेटल फोर्स, एंड दैट इज इक्वल टू बी क्यू वी. तो वी हमारा हो गया, वी के जगह रखेंगे आर ओमेगा. तो आर आर कट गया, यहाँ से ओमेगा मिलेगा हमें बी क्यू बाय एम, राइट. तो ओमेगा की जगह ये पुट कर देंगे. थीटा हमें मिलेगा बी क्यू टी बाय एम, एंड क्यू बाय एम क्या है? अल्फा दिया हुआ है यहाँ पर. तो बी अल्फा टी. We have got theta as b alpha t, and we have got the expression of velocity v naught cos b alpha t I cap plus v naught sin b alpha t j cap. Understood everyone? थोड़े जल्दी में लिया because we all have discussed these things, है ना. बस मैंने रिलेट किया जो जो पैरामीटर्स दिए हुए थे and those parameters in which our solution was required. ओके, वेलोसिटी तो हो गया. अब पोजीशन कैसे निकालेंगे? किसी पॉइंट पे विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन हम पोजीशन कैसे निकालते हैं? पोजीशन वेक्टर को देखें तो पोजीशन वेक्टर हमें क्या दिखेगा? लेट अस से यहाँ से ये ओरिजिन था, राइट. यहाँ से यहाँ तक पोजीशन, तो ये हमने ले लिया आर नॉट, राइट. अब ये जो एंगल होगा हमारा, वो एंगल वी कैन डिटरमाइन दैट एंगल. लेट अस टॉक अबाउट द डिफ्लेक्शन एंगल. लेट अस से इस केस में यहाँ पर दिस इज, चलो इस बार हम ले लिए इस एंगल को गामा. So what will be the position vector r naught sin gamma j plus r naught cos gamma I cap, right. और गामा में भी हम सेम एक्सप्रेशन लगाएंगे. Right, and we will get the value of r. तो पोजीशन क्या मिलेगा, या फिर ये भी कर सकते हैं. हमारे पास एक बार v मिल गया,
we will integrate this. We can write this as ds by dt, and with respect to t we can integrate it. That will be more simpler. इसके टर्म्स में सोचने से बेटर है. तो यहाँ से ds क्या मिल गया? v नॉट cos b अल्फा t I cap dt plus v नॉट sin b alpha t dt j cap. So we will integrate to get the position, और इंटीग्रेट करने पे क्या मिला? v नॉट sin b अल्फा, ये गामा कहाँ से आ गया? t b अल्फा t by b अल्फा along I cap प्लस साइन का इंटीग्रेशन cos, तो ये हो गया माइनस v नॉट cos b अल्फा t by b अल्फा along j cap. We can get this position, right? Is this understood how we found velocity? अच्छा, ये भी ध्यान देना है, ये जो velocity है, there is little mistake here which we didn't take into consideration. क्या mistake है? ये position निकालने में, क्योंकि velocity देखो, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है initial velocity हमने project किया along v naught, मतलब v naught I cap, right? तो उसका initial velocity की वजह से initial कुछ position भी होगा. So you have to also take that into consideration. So there is little mistake in finding the position. क्या mistake है? Integration में. So integration में ये देखो, here we integrated along y axis. ये देखो along y axis क्या हो रहा है हमारा integration? It's just 0 to let us say t. इधर भी किया हमने integration 0 to t. अगर इसका initial position origin है, it says find the time dependence, velocity and position of the particle with respect to origin. With respect to origin में we have found this one. अगर रहता with respect to कोई एक coordinate, let us say x naught y naught, तो हम क्या करते यहाँ पर velocity से भले ही हमें ये मिलता, but we would have added here x naught and here y naught, right? मतलब x naught y naught से अगर कोई दूसरा पोजीशन जा रहा है तो वहां से माइनस करेंगे, right? Minus x naught and then minus y naught if they are all positive. So these all things are just based on analysis. Yes, we forgot. See यहाँ पर constant of integration, ठीक है? You can understand in that term. तो एक constant आ जाएगा वहाँ पर, इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट अपीयर हो जाएगा. सो इज दिस क्लियर टू ऑल? कैसे हमने वेलोसिटी निकाला? Yes, sir. Okay, all right, then let us meet in the next class, but before that you all should complete the homework part of this module 18.1. ये पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए. So we will do the second part of 18.2. Okay, sir. All right, bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir.